سب سے پہلے میں دعوت دوں گی تلاوت قرآن پاک کے لیے مسٹر زبیر ہاشمی۔ مسٹر زبیر ہاشمی تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جی بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ مسٹر سلمان تشریف لے آئیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ مسٹر حافظ حمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الضحى مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ اب میں دعوت دوں گی نعت کے لیے، ہمارے پارٹیسپینٹس آ جائیں۔ مس ارم رفیق ایڈمن، مسٹر سہیل رانا او پی ڈی اسٹاف، مسٹر زبیر ہاشمی لیب مینیجر، مسٹر حافظ ارسلان لیب مینیجر، مسٹر علی عدنان ریسیپشن اسٹاف، مس خدیجہ الکبریٰ پرنسپل۔
جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں پر کی محشر میں برہم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ایسا میڈم بہت شکریہ. ہمارے سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہے مسٹر سہیل رانا. پلیز تشریف لے آئے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. بہت شکریہ. ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں مسٹر زبیر ہاشمی. پلیز تشریف لے آئے اسٹیج پر. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام
بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں. بہت شکریہ مسٹر زبیر. اور نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں مسٹر حافظ ارسلان. مسٹر حافظ ارسلان تشریف لے آئے اسٹیج پہ. پتا پنہانا پتا پنہانا پتا پنہانا پتا پنہانا مندیاں دی لج رکھنا ہوندا کم لج پالاں دا مندیاں دی لج رکھنا ہوندا کم لج پالاں دا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے وہ پھر کہیں کہ یہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ یہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں. ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ مسٹر علی عدنان. پلیز تشریف لے آئے اسٹیج پر. علی عدنان. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کاٹا
چھپانا نہ میرے آقا اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا بہت شکریہ. اگلے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں مس ختیجہ الکبریٰ. پلیز کم آن اسٹیج. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ خوشبو جی بہت شکریہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ رحمت
رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میڈم۔ اور اب ہمارے پاس اسپیچ کے پارٹیسپینٹس ہیں، وہ پلیز تشریف لے آئے۔ مسٹر عثمان لیب اسٹاف، مس ارم اشفاق ریکوری اسٹاف، مسٹر راشد ایڈمن، مس رفعت ایڈمن، مسٹر علی حسنین لیب اسٹاف، مس خدیجہ الکبریٰ پرنسپل اور میڈم گلزار، آپ لوگ تشریف لے آئیں۔ اور سب سے پہلی پارٹیسپینٹ ہماری ہے سب سے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے مسٹر عثمان، تشریف لے آئیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ عزیز سامعین، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے خدمت انسانیت۔ اسلام نے خدمت انسانیت کا مختصر سا تصور ہی نہیں دیا، بلکہ بتایا ہے کون لوگ ہیں جن کی خدمت ہونی چاہیے، کون لوگ ہیں جو ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اسلام کہتا ہے تمام مسلمان ایک امت ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک ہیں، ذمہ داری کا تقاضا ہے فرد بشر کے ساتھ تعصب سے نہ برتا جائے، ہر ممکن ان کی خدمت کی جائے۔ اسلام نے خدمت کا جذبہ ابھارا ہے، اسلام نے خدمت کا جذبہ ابھارا ہے اور ہر ممکن خدمت کی کوشش کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں انسان اس کی سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ کوئی شک نہیں انسان کے اندر خدمت کا جذبہ موجود ہے، مگر ذاتی اغراض، شخصی گروہی مفادات اس جذبے پر غالب آ ہی جاتے ہیں اور انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ برا رویہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ انسانوں کی خدمت کا رشتہ خدا کی عبادت سے جڑا ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت معجزن ہوگی وہ اس کے بندوں کی محبت سے خالی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید جہاں روزے کا ذکر کرتا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، حج کا ذکر کرتا ہے، جہاد کا ذکر کرتا ہے، تقوی کا ذکر کرتا ہے، دوسری طرف عبادات کا بھی ذکر کرتا ہے، انسانوں کی اہمیت کا بھی ذکر کرتا ہے، انسان کے حقوق کا بھی ذکر کرتا ہے، انسان کی خدمت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اسلام نے پوری انسانی تاریخ کا تجربہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ اخلاق والا رویہ رکھتے ہیں، احساس والا رویہ رکھتے ہیں، ہمدردی والا رویہ رکھتے ہیں، صبر و تحمل والا رویہ رکھتے ہیں، نرم مزاجی والا رویہ رکھتے ہیں، عاجزی انکساری والا رویہ رکھتے ہیں، محبت والا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی کا حق نہیں مارتے، نہ کسی کی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں۔ حرص سے، لالچ سے، حسد سے، بغض سے ان کا دامن پاک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا ٹائم آؤٹ ہو چکا ہے جی۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہماری مس ارم اشفاق، پلیز اسٹیج پر آ جائیں۔ صدر علی وقار اور میرے سامعین کرام، السلام علیکم۔ اپنے لیے دنیا جیتی ہے، اپنے لیے دنیا جیتی ہے، اپنے لیے جینا کیا جینا، لوگوں کے دکھوں کو رب کے لیے سہنے کا مزہ کچھ اور ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یہ انسانیت کی معراج بھی ہے۔ صدر علی وقار اور میرے سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے خدمت خلق۔ سامعین کرام، ضرورت مند کی حاجت روائی اور دل جوئی ہر مہذب کی تعمیر ہے۔ دین اسلام میں بھی محتاجوں اور یتیموں کو بھی مدد کرنے کے بعد اعتماد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو
करते थे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खिदमत खलक के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तंजीमों और अंजुमन काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे में अहले मुल्तान के एक रोशन मिसाल देना चाहूँगी। वाईसीडीओ के हेड CEO राना ज़हीर बाबर को सलाम कहना चाहूँगी, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी है। एक कहने को तो ये एक इदारा है, हम जानते हैं जो इस इदारे की बुनियादों का मकसद कार फरमा है, वो अजीम तर है। मैं उनको सलाम कहना चाहूँगी। खून ने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून ने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सामीन कराम, खिदमत खलक की जैसे तौफीक अता होती है वो अजीम होते हैं, वो खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें खुदा चुन लेता है अपने कामों के लिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, इस्लाम कुदरत पार रखने वाले हर उस शख्स को ये दावत देता है कि एक मालदार, गरीब, यतीम, मस्कीन के साले, मर्द, औरत या ताजिर सब रहने का मकसद है एक राह हो जाएं, सब अपनी मर्जी के मुताबिक तरक्की कर सकते हैं। और अब आखिर में मैं एक शेर के साथ अलविदा कहना चाहूँगी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अच्छे बरी पर। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस इरम। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस्टर राशिद, प्लीज कम ऑन स्टेज। आज इस कन्वेंशन में अपने चेयरमैन साहबान अपने स्टाफ के सामने लब कुशाई करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। आज मेरी तकरीर का मौजू इंसानियत है। मैं ये अपने गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इकबाल के एक मिसरे आपके सामने पेश करना चाहूँगा। खुदा के बंदे तो है हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मौजूद सामीन, इंसान अल्लाह ताला की एक ऐसी तख्लीक है जिसकी वजह से पूरे आलम में वजूद में लाया गया है, कि ऐसी तख्लीक जिसको अशरफ मखलूक़ात का लक़ब दिया गया है। अशरफ मखलूक़ात में तमाम मखलूक़ात में से अफजल व बेहतरीन है। बेशक अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक जो ईमान लाए हैं अच्छे काम किए वही तो मखलूक में बेहतर हैं। इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। डॉक्टर बनना सिर्फ दवाइयाँ तजवीज़ करने या सर्जरी करने का बारे में नहीं है। ये इन लोगों के साथ हमदर्दी और मेहरबानी के बारे में जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर की हैसियत से हमें लोगों की ज़िंदगी को इन तरीके से हैंडल करने का एहसास हासिल है जो कुछ दूसरे कर सकते हैं। हम मरीजों को इनके सामने से ज़्यादा कमज़ोर देखते हैं, जो वो खौफज़दा, चोट या गैर यकीनी होते हैं। और ये इन लोगों में हमारे पास हकीकी फ़र्क पैदा करने की ताकत है। इंसानियत इनके पास मंजर है। मशर्ती हसीयत या माली ज़राए से मुक़त्ते नज़र बका और इतराम के मरीजों के इलाज के बारे में ये इनकी कहानियाँ सुनने, इनके खौफ को, इनके दर्द सुनने के खदशात को दूर करने के बारे में है। ये बुरान के वक्त राहत, उम्मीद और यकीन दिलाने का ज़रिया है बनने के में है। ये मरीजों के हाथ थामने, आंखों में देखने और ये कहते हैं कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ। दिलों को शिफा देने वाले और रूह को ठीक करने वाले डॉक्टर इन लोगों के लिए उम्मीद रखते हैं जो कंट्रोल हो चुके हैं। हर हुनरमंद हाथों और शफकत भरी आंखों से इन लोगों को जिंदगी को छूते हैं जो दुख में सकते हैं। सफेद पोश फरिश्ते परू के तौर पर स्टेथोस्कोप के साथ वो बीमारों को तसल्ली देते हैं और आने वाले दर्दमंद को दर्द दूर करते हैं। इनका काम मोहब्बत की मेहनत है और ऊपर से बुलावा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के फरिश्ते हैं ज़ख्मों को ठीक करने के लिए और इंसानियत की लामताही मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए। दुखों की खामोशी में इनसे बेसाख्ता कलाम सुनते हैं और मेहरबानी, हमदर्दी और नरमी के साथ जवाब देते हैं। वो सियत के मुताज हैं, जिंदगी के चैंपियन हैं और इनकी बेलौस खिदमत इंसानियत का जज्बा प्रमाणित है। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस रिफत। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, respected audience, Assalamu alaikum. I'm Rifat, performing my duty as admin officer at YCD Hospital Executive 1 branch. I feel honored to speak on serving humanity, which is the key to a better society. Allah Almighty says in Quran, and do good indeed, Allah loves the doers of God. The Prophet, peace be upon, said, the best among you are those who benefit others. Dear audience, serving humanity means helping to the needy people and making society better. Like YCDO is working with this aim by providing food, clean drinking water, throughout filtration plants, and technical education to make youth self-reliant. It is also helped drug addicts by giving them shelter, treatment, and sports to rejoin society. Along with these services, a big initiative of YCDO is running over 18 hospitals and dispensaries to provide medical care to those who need. These efforts shows YCDO's deep
people's welfare. Our poet says the true purpose of life is to serving humanity. Those who help others are truly special. Let's promise to help people because loving humanity is loving God. May Allah act upon this. Thank you so much. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया. Next, Mr. Ali Hussain. औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. समीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम. अपने लिए दुनिया जीती है, अपने लिए जीना तो क्या जीना. अपने लिए दुनिया जीती है, अपने लिए जीना तो क्या जीना. लोगों के दुखों को रब के लिए सहने का नाम ही, सहने का मज़ा ही कुछ और है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना. है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना. यही इंसानियत की मिराद है. ज़रूरतमंद की वाजिद रवाई और दिल जोई हर मज़हब की तामील है. दीन इस्लाम में भी मोहताजों, गरीबों और यतीमों की मदद करने के वाज़ेह अहकामात हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया करते थे. और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. ऐसे ही इसी मकसद के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो अंजुमन काम सर अंजाम दे रही हैं. ऐसे ही अहले मुल्तान की एक जिंदा रोशन मिसाल देना चाहूँगा, यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ही अजीम लोग हैं जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी, इस अजीम इदारे की बुनियाद रखी. कहने को तो ये सिर्फ एक इदारा है, लेकिन हम जानते हैं कि इस इदारे की बुनियाद में जो मकसद कार फरमा है वो कितना अजीम है. आप देख सकते हैं कि एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 700-800 रुपए होती है. अगर वो बीमार हो जाए और किसी हॉस्पिटल में चेक करने इलाज करवाने के लिए चला जाए तो डॉक्टरों की फीस 1500 से 2000 से कम नहीं होती. आए और देखें यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टरों की फीस सिर्फ 10 रुपए है. 70-80% डिस्काउंट पर आपको फार्मेसी की अद्वियात फराहम की जा रही होती हैं. मकबूल रेट में लेबोरेटरी के टेस्ट परफॉर्म करके दिए जा रहे होते हैं. और सिर्फ यही नहीं, ऐसे इस इदारे ने, इस अजीम इदारे ने सड़कों से उठाकर ऐसे लोगों को एक नई जिंदगी की राह दिखाई. ऐसे लोग जिसने जो मुआशरे ने जिनको रिजेक्ट कर दिया था, जिसको घर वालों ने, उनके घर वालों ने बेदखल कर दिया था. ऐसे लोग जिन्हें हम देखकर दूसरी तरफ मुंह कर देते हैं कि ये तो नशई है, इनको तो कोई बाली नहीं. जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. खतीजातुल कुबरा, प्लीज कम ऑन स्टेज. पासे वफा और जज्बाए ईमा होना, यही है आदमियत और यही है इंसान होना. आली वकार अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने उस बंदे से, वो जो इंसानियत की खिदमत से दुनिया में नजरें चुराता था, सवाल करेगा कि मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं. मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया नहीं. मैं बेलिबास था, तूने मुझे लिबास पहनाया नहीं. और मैं बीमार था, तो मेरी अयादत को आया नहीं. आली वकार को बंदा अर्ज़ करेगा बारी ताला कि तू इन सब चीज़ों से पाक है. अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरा फुला बंदा भूखा था, फुला बंदा प्यासा था, फुला बंदा बेलिबास था और फुला बीमार था, मगर तूने ऐसी तरह आसानी इख्तियार की कि भूल कर भी एक निगाह उन पर न डाली. अल्लाह के इस तर्ज से ये मालूम होता है कि फ़कत दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ. आली वकार इंसानियत तो क्या, तमाम मखलूकात की खिदमत करना इंसान ही का फर्ज है. आली वकार खालिके कायनात ने फरिश्तों से सजदा करवाया इंसान को. खिदमत खलक एक ऐसा जोहर है जो इंसान को मौजूद मलाइक बनाता है. सजदा क्यों करवाया? क्योंकि इंसान वो है जो दूसरों की खिदमत करता है. फिर इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह की तमाम मखलूकात से बढ़कर अशरफुल मखलूकात बन जाता है. और फिर इंसानियत की खिदमत करते करते, बुलंदी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो अल्लाह का खलीफा बन जाता है. आली वकार खलीफा वो नहीं कि मखलूक खुदा भूख से मर जाए और वो सर
से ना उठाए। खलीफा वो नहीं कि कौम जहालत के अंधेरों में गुमराह हो जाए और वो गफलत की नींद में सोया रहे। खलीफा वो नहीं कि माशरे में बदअमनी बदहाली हो, जुल्म जबर और ज्यादती हो और वो हाथ में हाथ धरे फकत बैठा रहे, बल्कि खलीफा तो वो होता है जो अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करके भूखों को खिलाता है, भूखों को खिलाता है, प्यासों को पिलाता है, वे लिबास को पहनाता है, कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल कर इल्म के नूर से मुनव्वर करता है, अली वकार को गुमराह को राह दिखाता है। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। And our last participant, Madam Gulzar, please come on stage. उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपको देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। मैं एक शेर नज़र कर रही हूँ, आप खुद पहचानिएगा कि किसकी नज़र है। ये माना कि आप दिलरुबा नाज़नी हैं, मगर बंदा परवर खुदा तो नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि खुदा के बाद जो अल्लाह ताला की मखलूक है वो ऐसे काम कर रही है जिनका अल्लाह ताला ने बयान कुरान मजीद में भी किया है और फ़र्ज़ भी किया है। जैसे अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह फ़र्ज़ किए हैं और लोग बड़ी खुशअस्लूबी से निभाते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के सारे अहकामात पूरे करें ताकि हम जन्नत में जाएं और हमसे कोई गुनाह ना हो। इसी तरह हुकूकुल इबाद भी फ़र्ज़ है और हुकूकुल इबाद इतने फ़र्ज़ हैं कि हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा, उसमें जो है इंसानियत की खिदमत शामिल है। अगर आप हुकूकुल इबाद पूरा करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा काम इंसानियत की खिदमत है, वो हर लिहाज से है। जिस तरह हमारा एक इदारा YCDO इंसानियत की खिदमत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, अल्लाह ताला और इनको हिम्मत दे और मैं इन सबको सलाम करती हूँ। मैं आपको एक जिंदा मिसाल बता रही हूँ, मौजूदा मिसाल बता रही हूँ खिदमत खल्क की, कि एक PhD डॉक्टर हैं जो रफ़ा कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनका कुछ दिन पहले शदीद एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की छत तक उड़ गई, गाड़ी 2 टुकड़े हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का मुआवजा है कि वो अकलौते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें नई ज़िंदगी दी। 13 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, निश्तर हॉस्पिटल में, और दिमागी तौर पे भी थोड़ा उनको चोट लगी हुई है और इनका जख्म एक इतना गहरा है, चेस्ट के पास 5-6 इंच। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने बताया कि आप हमारे YCDO हॉस्पिटल ले आए, तो वो लेके आए और डॉक्टर शिवन शहजाद साहब ने इतनी खुशअस्लूबी से वो एक्सेप्ट किया, उनका इलाज शुरू किया। उनको तकरीबन आज 7-8 दिन हो गए हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है, उनके बूढ़े वालिदैन हैं वो भी मौजूद है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इतना खुश होती हूँ उसको देख के कि हमारे हॉस्पिटल YCDO में इस किस्म के मरीजों का भी इलाज हो रहा है और इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा होगा। शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं जनाब राजा कौसर सईदी साहब, कि वो माइक पर तशरीफ ले आएंगे और तिलावत, नात और स्पीच कंपटीशन के जो फर्स्ट 1 और 3rd लोग हैं उनकी अनाउंसमेंट करेंगे। राजा कौसर सईदी साहब, राजा साहब आए तशरीफ ले आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना हम पारस का टुकड़ा हैं, ना बेदिल कीमियागर हैं, ना हम पारस का टुकड़ा हैं, ना बेदिल कीमियागर हैं, मगर दश्ते हुनर की खाक को सोना बनाते हैं। हज़रत गिरामी शोबे तालीम व ताल्लुम में कमोबेश 34 साल गुजरे, लेकिन आज का ये यादगार, शानदार और बावकार प्रोग्राम देखकर एहसास हुआ कि आज इस मादियत परस्ती के दौर में भी मोहब्बत की शमें हमा वक्त रोशन की जा सकती हैं और उसका अमली मुजाहरा यहाँ देखने को मिला। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ YCDO की तमाम इंतज़ामिया को और ख़ुसूसन लाइक सर तकरीब व इज़्ज़त, पैकर शराफत व लियाकत, मीर कारवान उल्फत, नाज़ मसरत नशीनान अक़ीदत, साहिब बसारत व बसीरत, पैकर वजाहत व मतानत, CEO YCDO जनाब राना ज़हीर बाबर साहिब को इस शेर के साथ कि जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए
इसी तरह जनाब मेहर अली मुगल, मेंबर ऑफ द ईयर जनाब राना मोहम्मद मंशा, और YCDO के सदर और बैंकुर रहमा के रीजनल चीफ जनाब राना मोहम्मद इखलाक साहब के लिए भी एक शेर कि दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ था वैसा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था और जिस अंदाज से अपने अमले को यहाँ इल्म व अदब की सरगर्मी में शामिल किया गया, यकीनन वो भी काबिल सताइश है। तो मेरे साथ इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ व कारी एजाज साहिब और जनाब आशिक मोहम्मद साहिब भी यहाँ मौजूद थे, और जो नताइज मजमूई तौर पर मुरतब हुए हुस्न क़िराअत के, उसमें तीसरी पोजीशन हासिल की हाफिज़ हमज़ा ने। हाफिज़ हमज़ा जो है इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। अच्छा, ये जिनकी अनाउंसमेंट्स हो रही है ना वो स्टेज पर आते हैं, और सदर साहब से गुजारिश होगा कि आप भी और बाकी दोनों जजेस साहिबान भी आप भी तशरीफ लें ताकि उनकी जो सर्टिफिकेट्स है वो साथ के साथ। हाफिज एजाज साहिब, जनाब मोहतरम आशिक मोहम्मद साहिब आप भी तशरीफ ले आए सर। और तीसरी पोजीशन हाफिज हमजा, के लिए हाफिज हमजा बेटा आइए, जल्दी आइए, जरा जल्दी आइए बेटा। और दूसरी पोजीशन मोहम्मद सलमान, दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद सलमान ने उसने क़िराअत में। आ जाइए बेटा, आप भी आ जाइए। और पहली पोजीशन जुबैर हाशमी ने हासिल की है, उसने क़िराअत में पहली पोजीशन जुबैर हाशमी। इसी तरह जायज़े उसने नात में तीसरी पोजीशन भी इत्तफाक ऐसा है कि जुबैर हाशमी ने ही हासिल की है। तो जुबैर हाशमी जो है इस तरह दो पोजीशन के हकदार करार पाए, नात में इनकी तीसरी पोजीशन और उसने क़िराअत में पहली पोजीशन। और दूसरी पोजीशन नात में इरम रफ़ीक ने हासिल की है। इरम रफ़ीक तशरीफ ले आए, इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है जायज़े हुस्ने नात में। शेख असगर साहब स्टेज पर तशरीफ लें। और पहली पोजीशन हुस्ने नात में हासिल की है खदीजतुल कुबरा ने। बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने माशाल्लाह। हाँ, बहुत सारी तालियां खदीजतुल कुबरा के लिए। इन्होंने नात में पहली पोजीशन हासिल की है। ऐसे मैडम मुझे लगा आपने कहीं ट्रेनिंग के लिए, ऐसा ही है? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा है और कलाम भी बहुत आला इंतखाब किया है इन्होंने। और जायज़े तकारीर में तीसरी पोजीशन हासिल की है मिस रिफत ने। मिस रिफत तशरीफ ले आए, आपने तीसरी पोजीशन हासिल की जायज़े तकारीर में, और उन्वान था खिदमत इंसानियत। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और दूसरी पोजीशन अली हसनैन ने हासिल की है खिदमत इंसानियत के मौजू पर। दूसरी पोजीशन अली हसनैन ने हासिल की। बेटा जल्दी आइए ज़रा, कदम बढ़ाइए और अपनी जो है वो एजाज़ी सनद जो है वो वसूल कीजिए। और इत्तफाक ऐसा है कि जायज़े तकारीर में पहली पोजीशन खदीजतुल कुबरा ने हासिल की है। एक बार फिर पहली पोजीशन। वाह खदीजा, आपको बहुत मुबारक, आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, माशाल्लाह माशाल्लाह।